A very pleasant morning to all the dear students of class 9. Today again I welcome you on my online channel KVS Mathematics, and as the summer vacations have ended officially, so we are going to resume with our online classes as we were doing earlier. And you know that there have been some modifications and we will be using two apps for the online classes. Okay, so this is your video lecture that I'm sharing, and you can see that I have written that chapter 4 linear equations in two variables. So actually class 9 for now I am skipping the chapter 3 because it is coordinate geometry. Okay, and it needs the frequent use of board and graph papers, and also actually I am trying something different for you, and just give me a time for 1 week, and if I could get a better settlement for you, so that I can make you understand the things more clearly. Okay, so for that I am skipping the chapter 3 for now, and we will be doing chapter 4, that is linear equation in two variable. Before that I want to say that please do complete your work of the chapter number 1 and 2, and if you have any doubts then you can ask me in the classroom or in Google Meet app where we will be meeting. So starting with the linear equation in two variables, you have an idea of linear equations in one variable in 8th standard. Okay, and also I must tell you that if you have any doubt, or you want to clear your previous concept again, then if you have subscribed the channel, you can go through the playlist, and in that you can see the videos of linear equation in one variable for class 8 that I have made. So you can go through that video also. This is I can say that a great benefit of the online classes, that you can go through the previous concept and previous classes videos also of your teacher. So starting with the linear equation in two variables, of course you know that before arriving to the equations we have something known as expressions. Okay, you had expressions earlier, expressions जिनके बारे में आप 7th and 8th standard से पढ़ते आ रहे हैं, and expressions in which you first have known about the variables and constants, है ना, variables and constants you have, and so using variables and constants you make expressions, and expression जब आप expression में equals to put करके उसको किसी next thing, किसी other thing के लिए इक्वेट करते हैं, मीन्स इक्वल जहाँ पर आप पुट करते हैं टू एंड इक्वेट द लेफ्ट हैंड साइड एंड आर एच एस राइट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन, देन इट बिकम्स द इक्वेशन, एक्सप्रेशन बिकम्स द इक्वेशन. और आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को डील किया है. वन वेरिएबल कहने का मतलब है कि उसमें एक वेरिएबल प्रेजेंट होता है, वन वेरिएबल प्रेजेंट होता है, दैट इज यू कैन टेक एज एक्स और वाई, कोई भी वेरिएबल हो सकता है. यू नो दैट वेरिएबल्स जनरली आप स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई पी क्यू आर एस टी, है ना, यू वी डब्ल्यू भी होता है. सो यू कैन रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स बाय दीज स्मॉल लेटर्स एंड अदर्स ऑल्सो. सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का अगर हम एग्जाम्पल लें, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, if we will take the example of linear equation in one variable, so that can be 3x is equals to 9. Okay, this is an equation, this is left hand side LHS, this is RHS, and this is an equation, and this is containing only one variable, so therefore it is equation in one variable, and it is linear because variable की power यहाँ पर 1 है. ठीक है, आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल्स में आपने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस तरह के टर्म्स को आपने सीखा था. ओके, सो दैट इज power of variable is 1, therefore it is called as linear equation, and there is one variable, so it is linear equation in one variable. Likewise वैसे ही concept होता है. and also I must tell you, मैं आपको लीनियर इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन एक साथ समझाने की कोशिश कर रही हूँ. अगर आप इसके सॉल्यूशन की बात करें, लाइक कि आपकी वन वेरिएबल की इक्वेशन है
और आप सॉल्यूशन की बात करें कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपको पता है सॉल्यूशन वो वैल्यू होगी वेरिएबल की, ठीक है। इसमें इसमें स्टूडेंट्स बहुत कई बार कंफ्यूज रहते हैं, कई बार मिस्टेक भी करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए दैट सॉल्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इक्वेशन सेटिस्फाइड होने का मतलब ये है कि द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड फॉर दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इट मीन्स अगर आप इस इक्वेशन में x की ऐसी वैल्यू पुट करें, वो रियल नंबर्स हो सकते हैं, ओके। x की जो सॉल्यूशन है वो रियल नंबर्स में हो सकता है, एंड यू नो रियल नंबर्स मीन्स नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, इट कैन बी फ्रैक्शन मीन्स रैशनल नंबर p/q फॉर्म में, या अंडर रूट्स भी हो सकते हैं, ओके। सो द सॉल्यूशन ऑफ x इज अ रियल नंबर जिसके लिए ये इक्वेशन का LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए। इट मीन्स अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 पुट करके देखिए, ठीक है ना, अगर हम 1 बाय 1 देखें तो x पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा LHS में आपका ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 जो कि 3 आएगा, बट RHS इज 9, तो ये इक्वल नहीं हुआ, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी हेयर दैट पुट x इज इक्वल्स टू 3, तो आपका क्या होता है, इधर 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9 आएगा, और इधर आपका RHS 9 ही है, आपका RHS 9 ही है, ये इक्वल हो गया। सो इक्वल हो गया मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, इसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई x की वैल्यू 3 के लिए। सो x इज इक्वल्स टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और यू कैन से रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। और ये आप 8th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। मैं ये आपको इसलिए रिवाइज करा रही हूँ कि अगर आपने ये बेसिक समझ लिया है तो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन अंडरस्टैंड दैट ईजिली, ओके। नाउ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की अगर बात करें, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, सो हमारे हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है दैट इट मस्ट बी कंटेनिंग 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स दे कैन बी x एंड y या p q, इस तरीके से किसी भी कोई भी 2 वेरिएबल्स के साथ आपकी इक्वेशन हो सकती है। सो इफ इट इज कंटेनिंग x एंड y एंड वी विल राइट एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, like we can take the example, you can have the equation of the type like x plus 2y is equals to 3, obviously this is an equation, and ये आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, दिस इज x वेरिएबल, दिस इज y वेरिएबल, 2 एंड 3 आर कांस्टेंट है ना, और y का कोफिशिएंट 2 है, ठीक है ना, क्योंकि वो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट है, कोफिशिएंट आपने सीखा था। सो दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 plus 12 is equals to 0. It is again linear equation in 2 variable, okay. So these are the examples of linear equation in 2 variable, and you know why do we need the equations? We need the equations because when we have a problem, when we have a mathematical problem, when we have a word problem, हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन, जो आपने CCT क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत देखा होगा, ठीक है। यू आर गिवन अ प्रॉब्लम, यू आर गिवन अ सिचुएशन, और आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, देन यू कैन ईजिली ट्रांसफॉर्म देम इनटू द लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल बाय लेटिंग x एंड y, है ना। सो दैट इज व्हाई इट इज़ द नीड कि आप इक्वेशंस को समझें और इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना सीखें। सो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन भी हम ग्रेजुअली सीखेंगे। सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो आपको नोट डाउन करनी है वो नोट डाउन कर लीजिए आप। द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इट मीन्स आपको पता होना चाहिए दैट मैथमेटिक्स में समझना इज़ वन थिंग, एंड उसको अगर आपसे कोई पूछे तो उसको एक्सप्लेन कर पाना कि एक्चुअली आप व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसको एक्सप्लेन करना इज अनदर थिंग, तो वो भी आपको आना चाहिए। सो आई एम राइटिंग डाउन द डेफिनेशन फॉर दिस फॉर यू. So I am taking example to explain you that a and b are not both 0 क्यों बोला गया है. Like if I take the example like 2x plus 5 is equals to 0.
ठीक है. एंड इट इज़ द क्वेश्चन ऑल्सो दैट रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो मैं इस इक्वेशन को, आपको अभी ये देखने में एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, बट मैं इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल्स में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. कैसे? हाउ? इफ आई विल राइट दिस एज 2x plus 0 dot y, it means multiplication. Okay, this dot means multiplication. So multiplication 0 की y के साथ multiplication हो रही है, plus 5 is equals to 0. Okay, so this according to this I can write this equation in two variable. Okay, ये आपका 4.1 exercise में question number 2 भी है, और इसके इसी टाइप से आपके एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 भी है. तो आप एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 की खुद प्रैक्टिस करेंगे और 4.1 एक्सरसाइज खुद कंप्लीट करेंगे. ओके, उसमें कुछ भी नहीं है. लाइक और यहाँ पर आपका आइडेंटिफाई, उन्होंने ये करने के बाद दे आर ऑल्सो सेइंग दैट आइडेंटिफाई ए बी एंड सी. तो अगर आप इसको चेक करें, इसको कंपेयर करें विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. इसके साथ आप कंपेयर करें, सो यू कैन सी दैट हेयर ए इज इक्वल्स टू 2, b is equals to 0 and c is equals to 5. Okay, so this is your basically the question number 2 of exercise 4.1. so here you have represented this given equation in the linear equation in two variable, which says that here the coefficient of y is 0. Okay, now अगर आपकी इसी equation को ले लीजिए, ठीक है, they are saying that a and b are not both 0, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते. इस इक्वेशन को ले लीजिए. here in this equation you can see that the coefficient of y is 0. so अगर मैं coefficient of x भी 0 कर दूँ, it means मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ 0 dot x plus 0 multiply by y plus 5 is equals to 0. ओके, मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, मैंने x और y दोनों के कोफिशिएंट को 0 कर दिया. तो बेसिकली ये है कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज 5 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है ना, इसका इट इम्प्लाइज दैट 5 इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, इज दिस पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट करेक्ट. ओके, सो आइदर द कोफिशिएंट ऑफ x कैन बी 0 और द कोफिशिएंट ऑफ y कैन बी 0, मीन्स a कैन बी 0 आइदर और b कैन बी 0, बट दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकते. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. सो आई फोकस ऑन द मीनिंग सो मच बिकॉज अगर आपका मीनिंग और कॉन्सेप्ट आपका डेफिनेशन से क्लियर, अगर आप डेफिनेशन के एक वर्ड को हमेशा क्लियर करके चलेंगे तो आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम नहीं आ सकती. सो दिस इज योर इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर द चैप्टर 4. watch this video very carefully, and if you have any doubt from the previous class, you can go through the chapter class 8 video also and complete the exercise 4.1. okay, thank you so much class, and for subscribing my channel and for appreciating my videos. I'm very thankful to you. Just remain there, and because we can't say, the situation is so uncertain, so you should focus on the online classes, and just so that the efforts done by you and done by me and means done by teachers, all the teachers, and done by students can be fruitful to us. Okay, so thank you class for watching the videos. Thank you.